Good morning, students. Welcome back. I got one good question from your side. Although that question is related with the admission of a new partner, and that is a good question. Why I am saying that? Because in that question, the treatment we will get the chance to treat to know how to treat investment fluctuation reserve, and that will generate a concept how to treat these type of reserves when we are admitting a new partner and whenever we are reconstituting our partnership. This is not the case where this is not the only case where we need to treat these type of reserves. These type of reserves needed to be treated in every time when there is a reconstitution of partnership. Okay, so let's start. I'm talking about the question which I'm praising that much is the question of the book of D.K. Goyal class 12th, question number 54 of admission, that is of investment fluctuation reserve. So let's start and let's see how can we treat. First of all, if you guys are ready with the question in front of you, so let's begin reading the question. A and B, sharing profit and losses in the ratio of 3:2, decide to admit C for 1/3 share. On this date, their balance sheet disclosed the following items. We don't need to do any other thing. In this question, we are only asked that how will we treat the investment fluctuation reserve. So before starting this question, I just want to point out some bullet learnings which we must have generated through our videos or whatever slide videos I used to prepare at that time. So please go through that those videos if you have any confusion, and not very much but less part I will discuss here also. तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 54 फ्रॉम डीके. Question number 54 tells us book value of investment. First of all, write down the needed information which we have in the question. Book value of investment, that is 3 lakhs, and investment fluctuation reserve, that is how much? That is 40,000. तो पहली चीज ये कि हम लोग क्यों बनाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाते हैं ताकि आने वाले समय में इन फ्यूचर इफ the market price of investment decreases, अगर मार्केट हमारे इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस आने वाले फ्यूचर में अगर डिक्रीज करता है तो दैट इज अ लॉस एंड एंटिसिपेटिंग दैट लॉस वी प्रिपेयर रिजर्व कि अगर वो लॉस हमारे होगा तो हम लोग उस लॉस से निपटने के लिए क्या करेंगे, कैसे अपने आप को उस लॉस से बचाया जा सकता है. इसके लिए हम लोग नॉर्मली ये रिजर्व अपने फर्म में पब्लिक क्रिएट करती है. ठीक है, चलिए हमने भी क्रिएट किया है इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में कहा गया है 40,000 ऐसा रिजर्व क्रिएट करने के लिए कि उन्होंने पहले से रखा हुआ है. कोई बात नहीं है. अब देखते हैं सिचुएशन वाइज. इन दिस क्वेश्चन देयर आर 4 सिचुएशंस गिवन. फर्स्ट इज मार्केट वैल्यू 2,90,000. दूसरे केस में मार्केट वैल्यू 2,45,000 हो जाता है. तीसरे केस में मार्केट वैल्यू सेम एज इट इज, और चौथे केस में मार्केट वैल्यू इज मोर देन. इट मीन्स दिस इज द सिचुएशन ऑफ गेन, एंड व्हेन देयर इज गेन
वी डोंट नीड टू टच आवर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखते हैं किस तरीके से सारे कंडीशंस में, एंड इन द लास्ट फर्स्ट वी विल प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। तो केस 1 कुछ बुलेट पॉइंट्स थे जो मैं चाहता था कि आप लोगों से शेयर किए जाए। हमें पता है कि डिफरेंस बिटवीन MV and BV, MV means market value, book value, is shared by existing old partners. पता है हमें, ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस भी की हैं। अब चूंकि हो सकता है उस समय मैंने मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू कह के नहीं डिस्कस किया हो, लेकिन चीजें तो डिस्कस की गई हैं। अब ये क्वेश्चन में जब हमें मिला है तो फिर मुझे भी ध्यान आ गया कि हाँ, मार्केट वैल्यू को यहाँ पे कंपेयर कर लेना उचित है। तो हमें जब भी हमारा एसेट रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना होता है, आप सबको पता है, और रिवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में जो डिफरेंस है उसको पार्टनर्स को दे देते हैं। चाहे वो डिफरेंस इंक्रीज का हो या वो डिफरेंस डिक्रीज का हो, वो सारी चीजें उन पार्टनर्स को दे दी जाती हैं जो पहले जिन्होंने उसको अर्न किया है। चलिए, तो फिर और एक चीज और, रिजर्व्स आर ऑलवेज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये हमें ध्यान रखना है कि ये क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट का एक हिस्सा है जो कि बांटने की बजाय इसको एक रिजर्व बना के हम लोगों ने उस 40,000 को हम लोगों ने पार्टनर्स को न दे के उसका एक रिजर्व बना के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ओके। So let's start with case number 1, which is showing the value of market value of machinery is 2 lakh, investment is now 2,90,000. So the difference, first of all write down the difference, because in revaluation we only account difference. book value यहाँ पे ज्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है। तो मार्केट वैल्यू कम होने का मतलब देयर इज अ लॉस, 10,000 का लॉस है। और इसी लॉस के डर से, इसी लॉस से अपनी फर्म की फाइनेंशियल स्टेटस को अनइफेक्टिव रखने के लिए हम लोगों ने ये रिजर्व बनाया था। तो आज समय है कि हम लोग इस रिजर्व का इस्तेमाल करके इस लॉस को कंपेंसेट करें। चलिए देखते हैं। तो IFF अकाउंट डेबिट, रिजर्व हमेशा हमारी लायबिलिटी साइड में दिखाए जाते हैं, और यहां पे हम लोग इस रिजर्व को क्या करेंगे, IFF एट द टाइम ऑफ, कैसा मैंने जो बोला कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टू द ओल्ड पार्टनर्स। और ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, लेकिन ये क्या है, ये रिजर्व अगेंस्ट लायबिलिटी है, ये रिजर्व अगेंस्ट एसेट है। ये किसी एसेट पे पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए ये रिजर्व बनाया गया है। तो इस रिजर्व में जो भी हमारा एसेट का नुकसान या फायदा है उसको कंपेंसेट करने के बाद जितना भी हिस्सा बचेगा हम लोग क्या करेंगे, वो पार्टनर्स को ट्रांसफर करेंगे। तो हमारा IFF कितना है, 40,000। और अब
ये इन्वेस्टमेंट हमारा कितने परसेंट, कितने डिफरेंस कितना है हमारे इन्वेस्टमेंट का? 10,000। इस इन्वेस्टमेंट में जो 10,000 की जो उसके बुक वैल्यू में कमी आई है, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का जो डिफरेंस है 10,000, इस 10,000 की भरपाई के लिए हम लोगों ने इस रिजर्व का 10,000 का यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद जो बाकी बचे हिस्से हैं वो 3:2 के रेशियो में ए और बी आपस में बांट लेंगे, टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। बचा कितना? 30,000 और 3:2 मतलब 5, 18,000 और 12,000। ठीक है, आई बात समझ में? एनी कंफ्यूजन? इफ यू हैव, डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो। देयर इज द एंट्री ऑफ फर्स्ट कंडीशन। Now, situation number 2. Market value of investment is 2,45,000. Case 2. IFF will always be debited, क्योंकि ये हमारी एक तरीके से लाइबिलिटी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, तो इसको अगर हमें खत्म करना है तो हमें बार बार इसे डेबिट ही करना पड़ेगा। 2. इन्वेस्टमेंट में लॉस हो रहा है। कितने का लॉस है? इस बार लॉस हमें हो रहा है 45,000 का। सॉरी, कितने का लॉस हो रहा है? 55,000 का। 55,000 का लॉस हो रहा है, क्योंकि ये वाली कैलकुलेशन हम फिर करेंगे तो 3 लाख हमारा मार्केट वैल्यू है और ये 245 है, तो हमारा टोटल लॉस कितना हुआ? 45,000 रुपए का, सॉरी 55,000। और हमारे IFF से हम लोग कितना कंपेंसेट कर सकते हैं? 40,000। तो देयर आर लिटिल मोर लॉस लेफ्ट टू बी कंपेंसेटेड। यहाँ पे 15,000 का लॉस बच गया हमारे रिजर्व से के कंपेंसेशन, रिजर्व से कंपेंसेट करने के बाद भी हमारा लॉस बचा हुआ है। कितना? 15,000। इस 15,000 को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस की तरफ दिखाएंगे, जो कि बाद में जाके क्या होगा? हमारे पार्टनर्स को शेयर करना है। कितना? 15,000। So again, any problem? If you have, और इस एंट्री के बाद एक एंट्री और बनेगी इस कंडीशन में। वो एंट्री क्या है? वो एंट्री बनेगी इस रिवैल्यूएशन के लॉस को, जो कि डेबिट है, इसको हमारे पार्टनर्स के लॉस, ये लॉस है तो इससे हमारे पार्टनर का कैपिटल भी क्या होगा? एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल, इन दोनों को हम लोग डेबिट करेंगे। कितने अमाउंट से? तो 15,000 है, 9,000 और 6,000, 9,000 एंड 6,000, एंड टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या आएगा? जो लॉस हुआ उस लॉस को हम लोगों ने शेयर कर लिया। ये हो गया आपका केस नंबर 1 और केस नंबर 2। अब आते हैं केस नंबर 3 के तरफ। केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या कह रहा है? दैट इज शोइंग कि हमारा
जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों क्या है, सेम है, देयर इज नो डिफरेंस, इट बिकम्स, दिस कैलकुलेशन बिकम्स जीरो. सो आवर investment fluctuation reserve will not be affected, will not be used for compensating any loss. So all of the investment fluctuation reserve is available for distribution among old partners. तो हमारा जितना है 40,000 का जो रिजर्व है, ये पूरा का पूरा हमारे ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा to A's capital and to B's capital. Sorry. इज इट विजिबल? ओके. तो हम लोगों ने उस IFR को पूरा का पूरा अपने पार्टनर्स में बांट दिया. क्यों? क्योंकि हमारे IFR का कोई इस्तेमाल नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दैट. ठीक है. अब आते हैं केस 4. केस 4 में क्या है? केस 4 में देयर इज अ गेन. तो हम लोग अब गेन है, ये बताइए हम लोगों ने IFR बनाया किस लिए था? टू कंपेंसेट द लॉस. लॉस की करने वाली, लॉस से क्रिएट होने वाले रिस्क को कवर अप करने के लिए हम लोगों ने IFR बनाया था. जब यहाँ पे लॉस ही नहीं है तो वी नीड नॉट टू वरी अबाउट IFR. हमें इस IFR को जल्द से जल्द क्या करना है? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है. सेम एंट्री जो हम लोगों ने यहां पे की है, सेम एंट्री. इसके बाद इसमें एक एंट्री और बनेगी. वो किस चीज की? हमें जो इन्वेस्टमेंट पे लाभ हुआ है उस लाभ का भी हकदार सिर्फ ओल्ड पार्टनर है. हम लोगों ने पढ़ा था कि जो न्यू पार्टनर एडमिट होता है बिजनेस में हमारे, उसको ये अधिकार होता है कि वो बिजनेस की एग्जिस्टिंग एसेट्स में वो शेयर कर लेगा, क्योंकि उसने कैपिटल और गुडविल दोनों अमाउंट पे किया है. तो फ्यूचर प्रॉफिट और एज वेल एज द एसेट ऑफ कंपनी, फर्म, दोनों में उसको हिस्सा लेने का अधिकार है. लेकिन दोनों के बुक वैल्यू में हिस्सा लेने का अधिकार है, न कि उसकी मार्केट वैल्यू में. क्योंकि मार्केट वैल्यू अगर इंक्रीज हुई है तो उसमें किसका योगदान रहा है? उसमें ओल्ड पार्टनर्स का योगदान रहा है. और उन ओल्ड पार्टनर्स को उनका उनकी मेहनत की जो कमाई है वो उनको ही मिलनी चाहिए. सिर्फ इस बात का ध्यान हमें रखना है. तो आइए देखते हैं इन्वेस्टमेंट में होने वाला जो भी बदलाव है. इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, और जो हमारा एसेट इंक्रीज करता है तो हम क्या करते हैं? उसे डेबिट करते हैं. तो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. हम अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसे दिखाएंगे कि हमारा जो एसेट है वो इतने अमाउंट से अप्रिशिएट कर गया. कितने अमाउंट से? 25,000. ठीक है. ये हो गया आपका एंट्री फॉर एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट. अब करते हैं इसमें हम आखिरी एंट्री. अब रिवैल्यूएशन पे हुए, जिस तरीके से हम लोगों ने रिवैल्यूएशन पे हुए लॉस को पार्टनर्स में बांटा था, उसी तरीके से रिवैल्यूएशन पे हुए प्रॉफिट को भी हमें भरपूर पार्टनर्स को बांटने का अधिकार है. यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट था तो उसको शेयर करने के लिए हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, जिससे हमारे पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा? हमारे पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होगा. दैट्स व्हाई वी आर क्रेडिटिंग द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स.
तो ये रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट कितना हुआ 25,000, इनमें से इन दोनों का हिस्सा कितना हुआ 15,000 ए का और 10,000 बी का। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज रिलेटेड, इसी जिस तरीके से हम लोगों ने आईएफआर का क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसी से काफी कुछ मिलता जुलता कंडीशंस होती हैं हमारे WCR वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की। तो उन वैसी परिस्थिति में भी हम लोग इस तरीके का ही प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जहां पे हमारे अगर हमारे ऐसी कंडीशंस दी गई है और आईएफआर की जगह WCR है तो उसमें हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। WCR और आईएफआर ये दोनों रिजर्व अगेंस्ट एसेट होते हैं, रिजर्व अगेंस्ट लाइबिलिटीज होते हैं, जिसको इनका ट्रीटमेंट करने से पहले हमको इनमें से जो भी कंपेंसेशन करने के लिए इनको बनाया गया है, अगर वो कंपेंसेशन है उस समय, तो उस कंपेंसेशन को डिडक्ट करके तब हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे ओल्ड पार्टनर्स में। एंड कीप लेटिंग मी नो द क्वेश्चंस इन विच यू आर फीलिंग प्रॉब्लम। एज यू सजेस्ट मी एनी क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू फाइंड द बेस्ट टाइम and the soonest time when I can deliver you the solution of that answer. Thank you and all the best.